بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ سائلنسر لگے ہوئے ریوالور سے فائر کرنے والا نقلی آفیسر وہاں موجود تھا۔ پارس کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ ایک افسر کو ادھر آتے دیکھ کر اس نے نشانہ لیا۔ اس سے پہلے ہی میں نے اپنے معمول افسر کے ذریعے گولی چلائی تھی۔ ٹھائیں کی آواز دور تک گونجتی ہوئی گئی۔ اس آفیسر کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ کر گر گیا، لیکن اس کے بعد وہ ہوا جس کی ہم توقع نہیں کر سکتے تھے۔ پارس نے مردہ آفیسر کے ہولسٹر سے ریوالور نکال کر میرے معمول آفیسر کو نشانہ بنایا۔ میں نے اس کے ذریعے چیخ کر کہا، نہیں بیٹے، خبردار گولی نہ چلانا، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ میں اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکا۔ اس نے ٹھائیں سے گولی چلائی۔ میرا معمول لڑکھڑا کر گر پڑا۔ دو مسلح سپاہی جو پارس کے پیچھے چل رہے تھے وہ اسی عورت سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ پارس کو پکڑ کر دوڑتے ہوئے اس کو کوریڈور سے گزارتے ہوئے جانے لگے۔ میں اتنا ہی دیکھ پایا تھا۔ اس کے بعد اس آفیسر نے بھی دم توڑ دیا اور میں دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ میرے بیٹے کو یہ سن کر ذرا بھی جھجک نہیں ہوئی تھی کہ آفیسر کے ذریعے میں بول رہا ہوں۔ اس پر گولی چلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ باپ پر گولی چلا رہا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، لیکن ایک احساس ہوتا ہے۔ وہ احساس تنویمی عمل کے ذریعے مر چکا تھا اور وہ اپنے اختیار میں نہیں تھا۔ ایک لمحے کی تاخیر بھی پارس کو ہم سے نہ جانے کتنے عرصے کے لیے جدا کر دیتی۔ میں نے فوراً ہی خیال خوانی کی چھلانگ لگائی۔ قیدیوں کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ایجنٹوں سے کہا، فوراً یہاں سے نکلو، پارس کو پھر اغوا کیا جا رہا ہے۔ کیا تم لوگوں نے فائرنگ کی آواز نہیں سنی؟ ہم نے 2 بار آواز سنی ہے۔ ہر جگہ بھگدڑ سی مچی ہوئی ہے۔ تمہارے آس پاس جتنی گاڑیاں ہیں ان سب پر نظر رکھو۔ پارس کو ان میں سے کسی گاڑی میں لے جایا جائے گا۔ وہ پارکنگ ایریا میں دور دور تک نظر رکھ سکتے تھے، لیکن اسی وقت ایک گاڑی پارکنگ ایریا سے دور تیزی سے بھاگتی ہوئی دکھائی دی۔ کسٹم کے سپاہی اس گاڑی کی طرف فائرنگ کر رہے تھے، لیکن وہ فائرنگ کی زد سے نکل چکی تھی۔ میرے 2 ایجنٹوں نے دوڑ لگائی، قیدیوں کی گاڑی میں جا کر بیٹھے۔ اسے سٹارٹ کرنا چاہا تو پتہ چلا گاڑی کا پہیہ پنکچر ہو چکا ہے۔ یقیناً کسی نے سائلنسر لگے ہوئے ریوالور سے گولی ماری ہوگی اور پہیے کو بیکار کر دیا ہوگا۔ میں دوسرے ایجنٹ کے دماغ میں پہنچا۔ وہ موٹر سائیکل تیزی سے ڈرائیو کرتا جا رہا تھا۔ گاڑی اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی، لیکن وہ سمجھ رہا تھا کہ ایئرپورٹ کے احاطے سے نکل کر مین روڈ تک پہنچتے پہنچتے وہ اس گاڑی تک پہنچ جائے گا۔ میں نے اس سے کہا، اب تم ہی ایک آسرا رہ گئے ہو، کسی طرح بھی اس گاڑی کا پیچھا نہ چھوڑنا۔ اس نے رفتار اور بڑھا دی۔ اس کے پیچھے کسٹم پولیس والوں کی گاڑیاں تیزی سے دوڑتی آ رہی تھیں۔ خطرے کا سائرن بجایا جا رہا تھا۔ یقیناً پولیس والے ٹرانسمیٹر کے ذریعے آگے جانے والی گاڑیوں کو روکنے کے سلسلے میں احکامات جاری کر رہے ہوں گے۔ وہ 5 منٹ میں مین روڈ تک پہنچ گئے۔ وہ گاڑی بہت دور نظر آ رہی تھی۔ تعاقب کرنے والے اپنی رفتار بڑھاتے جا رہے تھے۔ میرا ایجنٹ سب سے آگے تھا۔ وہ ان سے پہلے ہی گاڑی کے قریب پہنچتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے ریوالور نکال کر گاڑی کی طرف فائرنگ کی۔ 2 بار اس کا نشانہ چونک گیا۔ تیسری بار پہیہ ایک دھماکے سے برسٹ ہو گیا۔ آگے جانے والی گاڑی ادھر سے ادھر ڈگمگائی، پھر رک گئی۔ سب سے پہلے میرا ایجنٹ وہاں پہنچا۔ اسے ایک عورت ڈرائیو کر رہی تھی۔ اندر اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی سٹیئرنگ سیٹ کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھولتے ہوئے پوچھا، پارس بابا کہاں ہیں؟ اس عورت نے غصے سے پوچھا، کون پارس بابا؟ میں کسی پارس کو نہیں جانتی۔ کیا تم نے ہی فائر کر کے میری گاڑی کا پہیہ بیکار کیا ہے؟ تم نے ایسی حرکت کیوں کی؟ تم کون ہو؟ میں نے اس بولنے والی کی دماغ میں پہنچنے کی کوشش کی تو اس نے سانس روک لی۔ اتنی دیر میں تمام پولیس والے آ گئے تھے۔ انہوں نے گاڑی کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ پھر ایک افسر نے اس عورت کو نشانے پر رکھتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ پروفیسر کو کہاں لے جا رہی ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے کار کے اندر جھانک کر دیکھا۔ دوسرے سپاہی نے کہا، جناب یہاں کوئی نہیں ہے۔ اس عورت نے اپنی رسٹ واچ دیکھی، پھر ہنستے ہوئے کہا، ابھی مسٹر فرہاد میرے دماغ میں آنا چاہتے تھے، اب میں انہیں آنے کی اجازت دیتی ہوں اور آپ لوگوں سے صاف صاف کہہ دوں کہ میں اپنے اختیار میں نہیں ہوں۔ مجھے جو کہا گیا میں نے اس پر عمل کیا۔ یہ کسی کسٹم آفیسر کی گاڑی وہاں کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے ہدایت دی گئی کہ جیسے ہی ایک بوڑھا پروفیسر گاڑی میں آ کر بیٹھے گا میں اسے تیزی سے ڈرائیو کرتی ہوئی اس شاہراہ پر لے آؤں گی، پھر اس کی رفتار کو چند سیکنڈ کے لیے کم کر دوں گی۔ وہ بوڑھا پروفیسر اس گاڑی سے چھلانگ لگائے گا، پھر میں اسے ڈرائیو کرتی ہوئی آگے جاؤں گی۔ اس کے بعد زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ گرفتار کر لی جاؤں گی، اور اب دیکھ رہی ہوں کہ گرفتار ہی ہونے والی ہوں۔ میں اس کی باتوں کے دوران اس کی سوچ پڑھتا رہا۔ وہ درست کہہ رہی تھی، خود اپنے اختیار میں نہیں تھی، پارس کی طرح تنویمی عمل کے زیر اثر تھی۔
उसे जो हुक्म दिया गया था वो उस पर अमल करती आई थी, और ये औरत वो नहीं थी जो पेरिस से हमारे बेटे के साथ लगी हुई थी। उसने कार की चाबी निकालकर दाएं हाथ से पुलिस ऑफिसर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये रही आपके बड़े अफसर साहब की गाड़ी की चाबी। उस औरत ने दाएं हाथ से चाबी बढ़ाई थी, जबकि पारस के साथ रहने वाली औरत बाएं हाथ से काम करती थी। आखिर वो बाएं हाथ वाली कौन थी? कमबख्त ऐसी जबरदस्त चालें चल रही थी कि हमारी कामयाबी नाकामी में बदलती जा रही थी। जो औरत गिरफ्तार हुई थी उसे यह नहीं मालूम था कि पारस गाड़ी से बाहर छलांग लगाने के बाद कहाँ गया है या कौन उसे लेकर गया है। यूं देखा जाए तो उस बाएं हाथ वाली का सिर्फ दिमाग काम कर रहा था, वरना एक्शन में तो हमारा बेटा था। वही हमारी कामयाबी को नाकामी में बदल रहा था। पहली बार उसने मेरे मामूल ऑफिसर को गोली मारी थी, दूसरी बार मेरा एजेंट उसकी कार के करीब पहुंच रहा था, लेकिन उससे पहले ही वो जाने कब गाड़ी के बाहर छलांग लगा चुका था। एजेंट उसे देख नहीं पाया था। अब मैं दुश्मनों से क्या गिला करता? मेरा अपना ही बेटा हमारी आंखों में धूल झोंक कर जा चुका था। आला बीबी ने अपने सर को थाम कर कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। उसने 12 घंटे बाद राबिता कायम करने का वादा किया है। मेरा ख्याल है 10 घंटे गुजर चुके हैं। मैंने कहा, और मेरा ख्याल है कि 12 घंटे पूरे होने के बाद भी वो बात नहीं करेगा। वो बाएं हाथ वाली एक बार बेटे से मेरा राब्ता कायम करा के मुसीबत उठा चुकी है, आइंदा और कोई मुसीबत मोल लेना नहीं चाहेगी। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। 12 घंटे पूरे होने के बाद मैंने पारस को मुखातिब किया तो उसने सांस रोक ली। मैंने वक्फे से 2-4 बार कोशिश की, हर बार मायूसी हुई। मैं बहुत देर तक सर थामे सोचता रहा। मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल चुका था। अब ये बात यकीनी हो गई थी कि उसके पास पहुंचने के लिए मुझे अमेरिका जाना होगा या जोजो को चारे के तौर पर आगे बढ़ाना होगा। सोचते सोचते फिर एक तदबीर दिमाग में आई। मैंने आला बीबी और सोनिया से मशवरा लिया। उन्होंने भी इस तदबीर को पसंद किया। मैं उसके मुताबिक शीबा के पास आया। अब वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी। मैंने कहा, पारस बेटे तक पहुंचने का अब तुम ही एक वाहिद रास्ता हो। मैं अपनी जान दे सकती हूँ, तुम हुक्म दो। तुम पारस के दिमाग में जाते ही जोजो का नाम लो, वो सांस नहीं रोकेगा। फिर तुम उसे यकीन दिलाओ कि तुम उसे रसवंती से ज़्यादा चाहती हो। उसकी दोस्ती और मोहब्बत का ख्याल करते हुए तुमने जोजो को इदारे से बाहर निकाल दिया है। मैंने उसे सारी बातें तफसील से समझा दी। वो मेरी हिदायत के मुताबिक अमल करना चाहती थी। उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला। एक आया ने आकर कहा, आमिल साहब तशरीफ़ लाए हैं और तुमसे मुलाकात करना चाहते हैं। वो अपने कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में आई। वहाँ उस पर तनवीमी अमल करने वाला एक सोफे पर बड़े शाहाना अंदाज में बैठा हुआ था। वो करीब आकर उसके सामने 2 जानू हो गई, फिर उसके हाथ को चूम कर खड़ी हो गई। उल्टे कदमों चलते हुए पीछे गई, फिर एक सोफे पर बैठ गई। आमिल उसे गहरी टटोलती हुई नज़रों से देख रहा था। फिर उसने पूछा, तुम्हारे बाजू का जख्म कैसा है? ये भर चुका है। क्या अब भी तकलीफ होती है? जी नहीं, अब आराम है। क्या तुम्हारा दिमाग हसास है? जी हाँ, मैं पराई सोच की लहरों को महसूस कर सकती हूँ। ये तुम कैसे कह सकती हो? ये बात यकीन से कोई नहीं कह सकता। आप भी हसास हैं, पराई सोच की लहरों को महसूस कर लेते हैं, लेकिन हम आप खुशफहमी में मुब्तला हो सकते हैं। हम यही सोचते रहेंगे, कोई हमारे दिमाग में आएगा तो हम उसे ताड़ लेंगे। हो सकता है कि वो आकर चला जाए और हम उसे ताड़ ना सकें। मैं अपनी तवानाई को खूब समझता हूँ। इसी तरह मुझे भी अपनी दिमागी तवानाई पर भरोसा है। इसीलिए कह रही हूँ, मेरा दिमाग हसास है। मैं पराई सोच की लहरों को महसूस कर लूँगी। इसके बाद खुदा बेहतर जानता है। वो फिर थोड़ी देर तक गहरी टटोलती हुई नज़रों से देखता रहा। फिर उसने पूछा, जब तुम्हारा बाजू जख्मी हुआ था क्या फरहाद तुम्हारे पास नहीं आया था? इसका जवाब मैं पहले भी दे चुकी हूँ। वो कई बार मेरे दिमाग में आ चुका है। सिर्फ वही नहीं, रसवंती और आर्मर भी आते रहे हैं। मैं तुम्हारे सच से खुश हो रहा हूँ। बोलती जाओ, वो क्यों आते रहते हैं? क्या कहते रहते हैं? फरहाद मुझे समझाता रहता है मैं अपने बच्चे से दूर ना रहूं। आप लोगों से इस बात पर झगड़ा करूं कि मैं माँ हूं, इसलिए बच्चा मेरे पास रहा करेगा। रसवंती क्यों आती है? वो फरहाद की बातें दोहराती है, मुझे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि बच्चा मेरे पास रहेगा तो वो सब मिलकर मुझे बच्चे के साथ यहाँ से निकाल ले जाएंगे। आमिल ने घूर कर पूछा, क्या इसलिए तुम बच्चे को अपने पास रखना चाहती हो? ये मेरा हक है। फरहाद, रसवंती और आर्मर के आने से पहले भी मैं यही कहती रही हूँ। आर्मर क्यों आता है? उसे अपनी बहन जोजो की बड़ी फिक्र है। वो पारस अव्वल को बहुत चाहती है, उसके बगैर रोती रहती है।
खाना नहीं खाती, पारस के पास जाने की जिद करती रहती है। आर्मर मुझसे इल्तजा करता है कि मैं पारस का पता बता दूं या जोजो को उसके पास पहुंचा दूं। आमिल ने कहा, यह बात काबिल यकीन नहीं है कि एक भाई अपनी बहन को इतने महफूज इदारे से निकालकर पारस के पास पहुंचाना चाहेगा। ज़रूर कोई चाल है। शीबा ने तायद में सर हिलाकर कहा, ज़रूर कोई चाल हो सकती है, लेकिन मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि पारस हमारे हाथ से निकल चुका है। क्या तुम फरहाद वगैरह के जरिए पारस के मुतालिक ताज़ा तरीन मालूमात हासिल नहीं कर सकती? फरहाद, रसवंती और आर्मर पिछले 10 घंटे से मेरे पास नहीं आए हैं। उनकी तरफ से मिलने वाली आखिरी इतला के मुताबिक पारस लंदन में है। आमिल ने खुश होकर कहा, शाबाश, मैं यही आजमाना चाहता था कि तुम हमारे साथ कितनी सच्ची हो। लंदन में हमारे सुराग रिसानों ने भी यही इतला दी है। पारस अभी उसी शहर में है। क्या तुम मालूम कर सकती हो कि फरहाद वगैरह पारस से किस तरह राबिता कायम करते हैं? मैंने मालूम किया था। पारस किसी को दिमाग में आने की इजाज़त नहीं देता है, फौरन सांस रोक लेता है। उस पर तनवीमी अमल का असर है। उस पर किसने तनवीमी अमल किया है, यह अभी तक मालूम नहीं हो सका। सिर्फ इतना पता चला है कि कोई औरत पारस के साथ रहती है। वही सोनिया का रूप इख्तियार करके एक बार फरहाद को धोखा दे चुकी है। क्या फरहाद बता सकता है कि हमने पारस को जहां कैद किया था वहां वो औरत कैसे पहुंच गई थी और किस तरह उसे वहां से निकाल ले गई थी? फरहाद इस सिलसिले में कुछ नहीं जानता। क्या वो ऐसे किसी शख्स को जानता है जिसका नाम ब्रूस मार्टिन है? उसके साथ एक 16 बरस का लड़का भी देखा गया है। जी हाँ, वो ऐसे 2 अशखास के मुतालिक जानता है। एक का नाम ब्रूस मार्टिन और दूसरे का नाम रॉबर्ट रेंगो है। ये दोनों अमेरिका से एक 16 बरस का लड़का लेकर आए हैं ताकि पारस उन्हें मिल जाए तो इस लड़के की जगह उसे वहां से ले जाएं, लेकिन उन्हें नाकामी हो रही है। आमिल ने कहा, शीबा, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुम वही रिपोर्ट दे रही हो जो पेरिस से हमारे जासूस दे चुके हैं। मैं आप लोगों से हमेशा सच बोलती आई हूं। मैं अपने मुल्क में, अपने कौम के लोगों में हूं। आपसे झूठ बोलने और बड़ों को धोखा देने का मतलब यह है कि मैं अपने ही हाथों अपनी पूरी कौम को तबाह कर दूं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसने ऐसे कहते कहते अचानक सांस रोक ली। इशारे से आमिल को समझाया कि उसके दिमाग में कोई आना चाहता है। हालांकि उसने सांस नहीं रोकी थी। अगर रोकती तो मैं कब का बाहर हो चुका होता। मैं बदस्तूर उसके दिमाग में मौजूद था और उसे गाइड कर रहा था कि अपने आमिल से किस तरह गुफ्तगू करना चाहिए, और वो उसी तरह करती जा रही थी। उसने आमिल से पूछा, क्या मैं किसी को दिमाग में आने की इजाज़त दूं? आमिल ने हाँ के अंदाज में सर हिलाकर कहा, जो भी आए उससे पारस के मुतालिक पूछो। उसने गहरी सांस ली, फिर आंखें बंद कर लीं। सोच के जरिए मुझसे पूछा, क्या मैं ठीक जा रही हूं? मैंने खुश होकर कहा, तुम कमाल कर रही हो। ज़रा गुस्से का मुंह बनाओ और आमिल से कहो कि मैं जोजो के सिलसिले में तुम्हें इल्ज़ाम दे रहा हूं। वो भी पारस की तरह इदारे से भाग गई है और उसके फरार में तुम्हारा हाथ समझा जा रहा है। वो गुस्से का मुंह बनाती रही। थोड़ी देर तक हम बातें करते रहे। फिर उसने सांस रोकने का मुजाहिरा किया, अपनी आंखें खोल दी। आमिल ने आहिस्तगी से पूछा, क्या हुआ? वो गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, मुझे उन लोगों की वजह से बार बार सांस रोकना पड़ती है, बड़ी परेशानी होती है। बहरहाल वो कह रहा है कि जोजो भी पारस की तरह इदारे से निकलकर भाग गई है। आमिल ने हैरानी से पूछा, क्या वाकई? हाँ, और वो मुझे इल्ज़ाम दे रहा है। कहता है कि मैंने पारस की तरह जोजो को भी वहां से भगा दिया है। वो आमिल सोफे पर सीधा होकर बैठ गया, फिर बोला, इसका मतलब है पारस को हमसे छीन कर ले जाने वाली औरत ट्रांसफॉर्मर मशीन तक पहुंचना चाहती है, इसीलिए उसने जोजो को भी अगवा किया है। मगर यकीन नहीं आता। किस बात का यकीन नहीं आता? यही कि तुमने टेलीपैथी के जरिए पारस को बाबा साहब के इदारे से निकाला था। तुम्हारे लिए यह आसान था। तुम वहां एक अरसे तक रहकर बहुत कुछ समझ चुकी थी। लेकिन वो कौन औरत है जो टेलीपैथी के बगैर जोजो को इस इदारे से निकाल कर ले गई है? वो औरत इंतहाई चालाक और तेज तरार होगी। मैं यकीन से कहता हूं कि उसका ताल्लुक सुपर मास्टर से है, और सुपर मास्टर ने ट्रांसफॉर्मर मशीन के जरिए उसके दिमाग को हैरत अंगेज बना दिया है, तभी वो ऐसे कारनामे अंजाम दे रही है। वो उस औरत का ताल्लुक सुपर मास्टर की टीम से जोड़ रहा था, जबकि ऐसा नहीं था। उस बां हत्थी यानी बाएं हाथ से काम करने वाली ने अपना अलग महाज बना रखा था, और जैसे जैसे हैरत अंगेज कारनामे दिखा रही थी, उससे यह ख्याल मुस्तहकम हो रहा था कि वो स्लारा हो सकती है, और उसकी पुश्त पर उसके भाई जॉर्ज फ्रीमैन, आयरन और हार्डी होंगे। मैंने एक तवील अरसे से आयरन और हार्डी को भुला दिया था। वो मेरे लिए गैर ज़रूरी हो गए थे। अब उनके दिमाग में पहुंचना महाल था।
क्योंकि उनकी दिमागी तवानाई बहाल हो चुकी थी। फिर उनके बहन भाई ने शायद ट्रांसफार्मर मशीन के सिलसिले में कामयाबी हासिल की होगी, तभी वो लापता हो गए थे। हमारी टेलीपैथी की जद में नहीं आ रहे थे। बहरहाल उस आमिल ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, शीबा, आज रात तैयार रहना, मैं तुम पर तनवीमी अमल करूंगा। शीबा ने उठते हुए हैरानी से कहा, लेकिन अभी तो पहली तारीख को 2 हफ्ते बाकी हैं। जब से तुम्हारा बाजू जख्मी हुआ है, फरहाद वगैरह को तुम्हारे दिमाग में आने की बड़ी छूट मिल गई है। मैं ये रास्ते बंद करना चाहता हूँ। यह कहकर वो जाना चाहता था। शीबा ने आगे बढ़कर कहा, मैं अपने बच्चे से मिलना चाहती हूँ। तनवीमी अमल के बाद जब मुझे इत्मीनान होगा कि अब तुम्हारे दिमाग में कोई नहीं आ सकेगा, तुम बेइख्तियार सांस रोक लिया करोगी, किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखोगी, तो बच्चे को तुम्हारी गोद में दे दिया जाएगा। उसके ममता भरे सीने से एक सर्द आह निकली। उसका नौजायदा बच्चा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो अपना दिल पकड़कर सोफे पर बैठ गई। आमिल बड़ी बेरुखी से मुंह फेर कर चला गया। मैंने तसल्ली दी, शीबा, हौसला करो, तुम बहुत जल्द अपने बच्चे के साथ इस कैद खाने से निकल आओगी। हम फिर मिलेंगे और अपने बच्चे के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजारेंगे। मैं उसे सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाने लगा और उसे बहलाने लगा। वो थोड़ी देर तक टहलती रही। फिर मैंने कहा, अगर थक गई हो तो आराम करो, थोड़ी देर बाद पारस से राबता कायम करना। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी उसके पास जा रही हूँ। उसने दिमाग पर दस्तक दी। पारस ने सांस रोक ली। थोड़े वक्फे के बाद शीबा ने फिर उसके दिमाग में पहुंचते ही कहा, जोजो। पारस ने चौंक कर पूछा, जोजो, क्या तुम हो? क्या तुम ख्याल ख्वानी कर सकती हो, या मुझे धोखा दिया जा रहा है? बहरहाल तुम्हारे नाम से मैं धोखा भी खा सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, कम से कम 12 घंटे बाद। ये कहते ही उसने सांस रोक ली। शीबा ने फिर 1-2 बार कोशिश की, मगर उसने दिमाग में जगह नहीं दी। मैंने कहा, उसने फिर 12 घंटे का वक्त दिया है। इसका मतलब है कि वो बां हत्थी उसे अभी तक लंदन से ले जाने में नाकाम रही है। हमें उस वक्त तक पारस से दिमागी राबता कायम करने की इजाज़त नहीं देगी जब तक उसे बाहिफाजत न्यूयॉर्क नहीं ले जाएगी। वो अपने बेडरूम में आकर बिस्तर पर लेट गई। उसका दिल रो रहा था। वो कहने लगी, पता नहीं कब रात आएगी, कब वो मुझ पर तनवीमी अमल करेगा। उसे कम से कम यकीन तो हो जाएगा कि मैं इस मुल्क की वफादार हूँ और तुम्हारे बच्चे को यहूदी बनाकर परवान चढ़ाने के सिलसिले में उनसे भरपूर ताउन करूंगी। तब ही वो मेरे बच्चे को गोद में देंगे और मैं उसे सीने से लगा सकूंगी। वो घड़ी में वक्त देखने लगी। उसे रात का बेचैनी से इंतजार था। मैंने कहा, यूं ही लेटी रहोगी तो वक्त नहीं गुजरेगा, खुद को मसरूफ रखो। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मैं बगैर इजाज़त के एक कमरे से दूसरे कमरे में भी नहीं जा सकती। तुम्हें जाने के लिए कदमों से चलने की ज़रूरत नहीं है। तुम ख्याल ख्वानी की परवाज़ करो, मेरे लंदन में एजेंटों के पास पहुंचो और देखो वो पारस को ढूंढ निकालने के सिलसिले में क्या कर रहे हैं। मैंने उसे एक एजेंट के पास पहुंचा दिया। वो एक के ज़रिए दूसरे और दूसरे के ज़रिए तीसरे के पास पहुंचते हुए उनकी मसरूफियात का जायज़ा लेने लगी। मैंने उसे उसी तरह रात तक मसरूफ़ रखा। रसवंती और आर्मर बारी बारी उसके दिमाग में आते जाते रहते थे। उन्हें मालूम हो चुका था आज रात उस पर तनवीमी अमल होने वाला है, लिहाजा वो और ज़्यादा मुहतात थे। 2 घंटे बाद ही मुझे इतला मिली कि शीबा पर तनवीमी अमल की तैयारियां हो रही हैं। ये हैरानी की बात थी। आमिल ने रात को अमल करने के लिए कहा था। मैं शीबा के पास पहुंचा तो उसने कहा, आमिल को शायद शुबा है कि जब वो तनवीमी अमल की बात कह रहा था तो शायद तुम में से कोई मेरे दिमाग में था, लिहाजा वो वक्त मुकर्ररा से बहुत पहले ही ये अमल करके मुतमईन होना चाहता है। वो अपने तौर पर दुरुस्त सोच रहा है। इस वक्त लबीब में शाम के 4 बज रहे हैं। हम में से कोई ये सोच भी नहीं सकेगा कि इस वक्त तुम पर यह अमल किया जा सकता है। वो आमिल अच्छी तरह जानता था कि किसी पर जबरन अमल नहीं किया जा सकता, ना ही उसे महकूम बनाया जा सकता है। लिहाजा उसने अमल से पहले एक इंजेक्शन लगाया, जिसकी वजह से वो आसाबी तौर पर कमज़ोर होने लगी। उसने इंजेक्शन लगाते ही कहा था, मेरी आंखों में देखती रहो। उसकी आंखों में देखती रही थी और कमज़ोरी महसूस करती जा रही थी। अगर मैं, रसवंती और आर्मर उसके दिमाग में ना होते तो वो पहले की तरह बड़ी मजबूरी और बेबसी से उस आमिल के ज़ेरे असर आ जाती। हम तीनों टेलीपैथी जानने वाले बैक वक्त उसके दिमाग में थे। वो हमारे लिए बहुत अहम थी। मैं रसवंती को हिदायत दे रहा था। वो शीबा की ज़ुबान से बोलती जा रही थी और यह तासुर दे रही थी कि शीबा अब मुकम्मल तौर पर ट्रांस में आ गई है।
और उसकी मामूला बन रही है। आमिल ने पूछा, क्या तुम मेरी महकूम हो? हाँ, मैं तुम्हारी महकूम हूँ। क्या तुम मेरे हर हुक्म की तामील करोगी? हाँ, मैं तुम्हारे हर हुक्म की तामील करूँगी। फिर सच सच बोलो, तुम्हारे दिमाग में कोई है? मैं सच बोलती हूँ, मेरे दिमाग में कोई है। आमिल ने उसे चौंक कर देखा, फिर पूछा, तुम्हारे दिमाग में कौन है? मेरे दिमाग में कोई नहीं है। अभी तुमने कहा था कोई है। आपने हुक्म दिया था, मैंने उसके मुताबिक कह दिया। तुम मेरा हुक्म समझ कर नहीं, सच समझ कर कहो, दिमाग में कौन है? मैं सच समझ कर कहती हूँ, मेरे दिमाग में कोई नहीं है। उसने पूछा, तुम्हारा बाजू जख्मी कैसे हुआ था? मैं जोजो के दिमाग में थी, उसे किसी तरह बहका कर इदारे से निकालना चाहती थी। जोजो ने कहा वो मेरे दिमाग में आकर बात करना चाहती है, लिहाजा उसे मैंने अपने दिमाग में आने की इजाज़त दे दी। आमिल ने कहा, तुमने एक नादान लड़की की बात क्यों मान ली? क्यों उसे दिमाग में आने दिया? वहाँ जोजो की हिफाजत की जा रही है। उन सबको इस बात का अंदेशा है कि पारस अव्वल जोजो के लिए बेचैन होगा, उसके लिए जिद करता होगा, लिहाजा दुश्मन अब जोजो को ट्रैप करेंगे। अगर मैं इससे राबता कायम करने के लिए कोड वर्ड्स बताती तो कोई भी उसके दिमाग में छुप कर वो कोड वर्ड्स सुन सकता था। इसलिए मैंने उसे अपने दिमाग में बुला लिया। उसे कोड वर्ड्स ही बता रही थी कि अचानक फरहाद ने मेरे दिमाग में ज़ोरदार झटका पहुंचाया। मैं संभलने भी नहीं पाई थी कि उसने दूसरी बार झटका पहुंचाया। तुमने अपने ही हाथ से अपने बाजू को किस तरह जख्मी किया? 2 बार दिमागी झटके खाने के बाद इंसान अपने बस में नहीं रहता। आपको नहीं मालूम, जैसे दिमाग में जलजला आ जाता है, हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं, आदमी की आधी जान निकल जाती है। ऐसे में मैं क्या कर सकती थी? उसने मेरे दिमाग पर कब्जा जमाकर वो चाकू मेरे एक हाथ से उठाया और दूसरे हाथ को जख्मी कर दिया। तुम्हारे जख्मी होने के बाद फिर तो वो तुम्हारे दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा चुका था। तुम कब तक उसके काबू में रहीं? जब मेरे जख्म भरने लगे, मैं खुद को तवाना महसूस करने लगी तो मैंने समझाया, बगैर इजाज़त मेरे दिमाग में ना आया करो। उस दिन से वो इजाज़त लेने लगा था। तुम कैसे कह सकती हो कि वो चुपचाप नहीं आता होगा और तुमसे मकर नहीं करता होगा? शीबा ने जवाब दिया, एक दिन उसका फरेब खुल गया। वो चुपचाप मेरे दिमाग में आया था। उसे इस बात का इल्म नहीं था कि मेरी दिमागी तवानाई बहाल हो चुकी है और मैं पराई सोच की लहरों को महसूस कर लेती हूँ। ऐसे में मैंने पूछा, तुम कौन हो? वो फौरन वापस चला गया। कोई 1 घंटे बाद उसने आने की इजाज़त मांगी। मैंने कहा, तुम इससे पहले भी आ चुके हो और अब तक मुझे धोखा देते रहे हो। वो कस्में खाने लगा। उसने मुझे यकीन दिलाया कि शायद रसवंती आकर गई होगी। वो तुम्हारे दिमाग में आकर क्या कहता था? वो कहता था, जिस तरह मेरे यहूदी अकाबरी ने मंसूबा बनाया है कि मैं अपने नौज़ायदा बच्चे के साथ न्यूयॉर्क जाकर रहूं और वो उधर से मेरे पास आए तो हम दोनों न्यूयॉर्क में घरेलू ज़िंदगी गुजारेंगे। ऐसे में हमारा बच्चा यहूदी बनकर परवान नहीं चढ़ेगा। तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक वो मुसलमान ही रहेगा। बहरहाल फरहाद ने मुझे मेरे ही यहूदी अकाबरीन का हवाला देते हुए कहा कि वो न्यूयॉर्क आने के लिए तैयार है, लेकिन मैं उसका साथ दूंगी। अपने आमिल पर यही जाहिर करूंगी कि मैं उसके तनवीमी अमल के ज़ेरे असर हूँ, यहूदी कौम से मोहब्बत रखती हूँ, मेरी टेलीपैथी की सलाहियतें मेरे वतन के लिए हैं। ये सब कुछ मैं जाहिर करती रहूंगी, लेकिन दरपर्दा फरहाद का साथ दूंगी और मौका पाते ही अपने बच्चों को लेकर उसके साथ बाबा साहब के इदारे में वापस चली जाऊंगी। क्या जख्मी होने के बाद मेरे तनवीमी अमल का असर ज़ायल हो चुका था? मैं यकीन से नहीं कह सकती ऐसा हुआ होगा। तुम यकीन से क्या कह सकती हो? मैं अब भी अपने वतन से मोहब्बत करती हूँ, मुझे अपनी कौम से प्यार है। मेरा दिल, मेरा दिमाग कहता है कि फरहाद कभी ज़िंदगी भर साथ नहीं देगा, लिहाजा मुझे अपने बच्चे पर तवज्जो देना चाहिए, उसे यहूदी बनाकर परवान चढ़ाना चाहिए। एक दिन वो भी टेलीपैथी के ज़रिए मेरी तरह अपने वतन और अपनी कौम की खिदमत करेगा। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, आइंदा तुम किसी भी टेलीपैथी जानने वाले से कोई राबिता कायम नहीं करोगी। मैं किसी भी टेलीपैथी जानने वाले से कोई राबिता कायम नहीं करूंगी। किसी भी सोच की लहर को महसूस करते ही सांस रोक लोगी, खा कुछ हो, उसे दिमाग में आने की इजाज़त नहीं दोगी। मैं किसी भी पराई सोच की लहर को महसूस करते ही सांस रोक लूंगी और किसी को दिमाग में आने की इजाज़त नहीं दूंगी। हम एक अहम मामले में तुम्हें राजदार बनाना चाहते हैं। राजदार बनने के लिए लाजमी है कि तुम फरहाद और उसकी तमाम साथियों से छुप कर रहो। मैं राजदार बनकर रहने के लिए फरहाद और उसकी तमाम साथियों से छुप कर रहूंगी। खुसूसन तमाम टेलीपैथी जानने वाले को तुम्हारा सुराग नहीं मिलना चाहिए, और ये उस वक्त ही मुमकिन है जब तुम उनसे बात करना भी गवारा नहीं करोगी।
उन्हें अपने दिमाग में आने की इजाज़त नहीं दोगी। जैसा हुक्म दिया है उसी के मुताबिक सांस रोक लिया करोगी। तुम इतनी पुरअसरार बनोगी कि वो कभी तुम्हारी बू तक ना पहुंच सकें। रसवंती शीबा की जुबान से वादे कर रही थी कि वो अपने आमिल के हर हुक्म की तामील करती रहेगी। हमारा ख्याल था वो जिस मामले में शीबा को राजदार बनाना चाहता है उसका जिक्र अब करने ही वाला है, लेकिन उसने कहा, तुम्हें राजदार बनाने से पहले तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा। तुम्हें एक सख्त आजमाइश से गुजरना होगा। मैं अपने आमिल के हर हुक्म की तामील करूंगी, हर आजमाइश से गुजर जाऊंगी। मैं हुक्म देता हूं, तुम अपने बेटे जेसन हारून को अपने हाथों से कत्ल करोगी। शीबा का कलेजा धक से रह गया। हम उसे अंदर ही अंदर संभाल रहे थे। मैं समझा रहा था, जरा सब्र और हौसले से काम लो। वो शैतान जो कहता है उसकी हाँ में हाँ मिलाती जाओ। ये तुम्हारी आजमाइश का वक्त है। अगर हम उसके दिमाग में ना होते तो वो सारा खेल बिगाड़ देती। एक तरफ मैं उसे संभाल रहा था, दूसरी तरफ रसवंती उसकी जुबान से कह रही थी, मैं अपने हाथों से अपने बेटे जेसन हारून को कत्ल करूंगी। मैं मुकम्मल तौर पर शीबा को अपने कब्जे में लिए हुए था। उसके हाथ पांव में एक जरा सी लर्जिश पैदा होने का मौका नहीं दे रहा था। अगर जरा भी वो कांप जाती तो आमिल को शुबा हो जाता कि उसके पीछे टेलीपैथी जानने वाले अपनी चालें चल रहे हैं। उसने हुक्म दिया, तुम 2 घंटे तक तनवीमी नींद सोती रहोगी। बेदार होने के बाद तुम्हें अपने सरहाने एक चाकू नजर आएगा। तुम वो चाकू उठाओगी और दूसरे कमरे में जाओगी। वहां तुम्हारा बेटा नजर आएगा। तुम उसे देखकर अपनी ममता भूल जाओगी। तुम्हारे एहसासात मर जाएंगे। तुम्हारे अंदर एक ही जज्बा होगा और वो होगा कत्ल का जज्बा। तुम अपने हाथों से अपने बेटे को हलाक करोगी। उसने अपना अमल मुकम्मल किया, फिर उसे 2 घंटे तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद गहरी खामोशी छा गई। चूंकि शीबा की आंखें बंद थीं, इसलिए हम देख नहीं सकते थे कि वो आमिल कमरे में मौजूद है या नहीं। इधर शीबा कह रही थी, फरहाद मुझे छोड़ दो, मुझे उठने दो। मैं इस शैतान के बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये मेरे बच्चे को मेरे हाथों से हलाक करवाना चाहता है। आखिर ये लोग कैसी जलील हरकतें कर रहे हैं? क्या मुल्क और कौम की तरक्की के लिए, क्या अपने मुल्क को बड़े से बड़ा फायदा पहुंचाने के लिए एक माँ के हाथ से उसके बच्चे को कत्ल कराया जाता है? मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा, ना सुना, ना पढ़ा। ये क्या हो रहा है? मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। मैं कोई ढोंग नहीं करूंगी। मैं साफ जाहिर कर दूंगी कि तरमीमी अमल के ज़ेरे असर नहीं हूं। देखो, मुझे जाने दो। वो आमिल का बच्चा अभी कमरे में होगा। मैं उसे यहीं ख़त्म कर दूंगी। अकल से काम लो। तुम औरत हो, नाजुक हो, उसके मुकाबले में बेहद कमज़ोर हो। मैं तुम्हारे दिमाग में रहकर उससे लड़ना भी चाहूँ तो तुम्हारे नाजुक जिस्म से उस पर गालिब नहीं आ सकूंगा। वक्त का इंतज़ार करो, ज़रा सब्र से काम लो। मैं, रसवंती और आर्मर उसे समझाते रहे, उसे यकीन दिलाते रहे कि उसके बच्चे को हलाक नहीं होने देंगे, लेकिन जो वो चाहता है वो उसके सामने ज़रूर करेंगे। थोड़ी देर बाद कमरे में आहट सुनाई दी। कुछ लोग आए थे, फिर उसे स्ट्रेचर पर डालकर ले जा रहे थे। थोड़ी दूर चलते रहने के बाद वो फिर रुक गए। उन्होंने उसे उठाकर एक बिस्तर पर डाल दिया। शीबा कह रही थी, मेरी आंखें बंद हैं, लेकिन मैं यकीन से कहती हूँ यह मेरी अपनी ख्वाबगाह है जहाँ मुझे पहुँचाया गया है। उसे लाने वाले शायद जा चुके थे। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी थी। शीबा ने ज़रा सी आंख खोल कर देखा। कमरा खाली था, दरवाज़ा बंद था। उसने दाएं बाएं सर घुमा कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन बाएं तरफ जहां फलों की ट्रे रखी हुई थी वहां एक चाकू पड़ा हुआ था। शीबा ने गुस्से से कहा, देखो, इस मरदूद ने पहले से यहाँ चाकू रखवा दिया है ताकि मैं 2 घंटे बाद इसे लेकर उठूं और दूसरे कमरे में अपने बच्चे के पास जाऊं। रसवंती ने कहा, इसका मतलब है दूसरे कमरे में तुम्हारा बच्चा होगा। तुम उससे मिल सकोगी, उसे सीने से लगा सकोगी। शीबा एकदम से खुश हो गई। मैंने कहा, तुम दूसरे पहलू को सोचती नहीं हो। इस बहाने बच्चे से तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। बच्चे की मोहब्बत कभी कभी माँ को कांटों पर चलने के लिए मजबूर कर देती है। तुम इस कमरे में जाओगी और यहाँ से चाकू लेकर जाओगी। वो जो चाहते हैं तुम वही करोगी, लेकिन बच्चा जिंदा सलामत रहेगा। आधा घंटा गुजर चुका था। हमने उसे समझा मनाकर सुला दिया। हमें यह बात चुभ रही थी, आखिर वो क्या अहम मामला है जिसके सिलसिले में वो शीबा को राजदार बनाना चाहते हैं और उसे राजदार बनाए रखने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। इसीलिए वो तनवीमी अमल कर रहा था
اور یقین کرنا چاہتا تھا کہ ہم اس کے دماغ میں نہیں ہیں۔ یقین کرنے کا یہی ایک راستہ تھا کہ شیبہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو ہلاک کرنے کا وعدہ کرے۔ اگر واقعی وہ تنویمی عمل کے زیر اثر ہوگی تو یقیناً چاقو لے کر اپنے بچے کو ختم کر دے گی۔ یہی وہ آزمانا چاہتے تھے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ محض آزمائش ہوتی، وہ ہمارے بیٹے جیسن ہارون کو کبھی ہلاک نہ کرواتے۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔